500 बाल्टी मैला फेंका हमने, तो शरीर क्या कहेगा मैम। हम लोग तो दूसरे के घरों में जाके शौचालय साफ कर देते हैं, उनको बीमारियों से बचा देते हैं, पर हम लोग खुद आज बीमारी से घेर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं हम लोग। कभी तो देखे तो खाना में चूहा ढुक जाता है, क्या करेगा। Any area which is unhealthy and unsafe for living is taken as a thumb rule to identify Islam. इंडिया का आदमी को कभी स्लम पता नहीं चलता है, वो फॉरेन वाला आके एक फिल्म बना के ऑस्कर भी ले लिया। It's 6 a.m. in the morning in the slum of Ward 10 in Guwahati. Among the slum dwellers, Amar Baspor is getting ready for his day to work as a manual scavenger. Amar's 10 feet by 12 feet home is just a stone's throw away from the railway tracks. His children, aged 7, 9 and 12 years, left their schooling amid the pandemic. जिसका पाइप ब्लॉक हो जाता है ना, तो पाइप ब्लॉक कर खोलने के लिए हम लोग टैंकी के अंदर में उतरना पड़ जाता है जरूरत पड़ने से। पहन के मतलब क्या मैम, अभी जैसे देखिए अभी हम ये अपना शरीर में कपड़ा पहना हुआ है, इसमें हम लोग अपना घर से 2 कपड़ा पहन के चला जाता है। जैसे कोई हाफ पैंट हो गया, अभी एक मेरा फुल पैंट है ही, तो उसमें हाफ पैंट पहन कर हम लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जूता जूती ये सब कुछ हम लोग को नहीं लगता है। जीएमसी का काम तो करता रहा पहले में। हाँ, आपको आज 2 साल हुआ, तो माली गांव में हमको जीएमसी का काम मिला था, उसमें करता रहा। 5,000 रुपये सैलरी देता रहा, और उसमें सैलरी मतलब ठीक टाइम पे नहीं था मेरा, तो कोई 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख ऐसा देता रहा, टाइम पे नहीं देता रहा। तब हम लोग मजबूरन वो काम में हम लोग छोड़ दिया, वो काम में हम लोग जाता भी नहीं, मतलब वो काम हम लोग को लायक नहीं है, मतलब कि वो सैलरी ठीक टाइम पे देता नहीं, तो इसीलिए हम लोग अभी ये ड्रेन वगैरह वगैरह ये सब करते रहता है। वो भी उसमें कचरा उठाने का काम करता रहा। लड़का बच्चे का पेट चलाने के लिए क्या करेगा? Chania Devi is another resident of the Harijan community here, who works as a manual scavenger from time to time. Widowed 8 years ago, she is the sole bread earner for her 5 children and hence had to take up manual scavenging to be able to give her children a better life. कोई जानबूझ के कोई ये सब काम में हाथ नहीं लगाते हैं। मैं क्या करें, पेट पालना है, पेट चलना है तो करना तो पड़ेगा मेरे लड़का बच्चा के लिए। पति का नौकरी को भी होम गार्ड का नौकरी उसमें दरमा था 7,000 रुपया। 7,000 क्या गुजारा हमें? अपना पति के साथ में हम काम करते थे। पति का कोई टंकी की काम मिल गया तो साथ में जाकर काम करते थे हम। वो डिंग का वो निकालते थे, हम फेंक देते थे। मैंने साथ में बहुत किया है मैम। हम बोलते हैं ना, जब बोलने लगेंगे ना मैम, हम रो देंगे, हम खुद रो देंगे। वो जो दिन गुजरा है ना मैम, अभी जो गुजर रहा है, हम बोलते हैं ना, पल पर रो रो के हम जिंदगी जी रहे। हम सोचते कि हम कुछ ऐसा करें, हमको भगवान कुछ दे कि लड़का बच्चा के लाइफ में कुछ कर सके। मजबूर है मैम, उसका काम मिल नहीं रहा है, हम क्या करें।
Just like Amar and Chania Devi, there are around 80 families who live here in this slum in Ward 10 of Guwahati. These people are struggling every day to make their ends meet. Although it has been 8 years since the parliament enacted the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation. But the act hasn't quite been implemented for these people. And that is why some of these people are still working as manual scavengers. Two surveys were conducted for the identification of manual scavengers, one in 2013 and another in 2018. But the people of this slum were left out from the survey both the times. As per the Ministry of Social Justice and Empowerment, any person working as a manual scavenger can make a request under Section 12(1) of the MS Act 2013 in urban areas and under Section 15(1) in rural areas to the concerned Chief Executive Officer for the identification as a manual scavenger either during the survey or any time thereafter. The Chief Executive Officer shall cause such requests inquired into within 15 days to ascertain whether the applicant is a manual scavenger. The survey carried out in 2013 identified 157 manual scavengers in Guwahati. Unable to find their names in the list, sanitation worker Santosh Paspur, along with a few others from their slum, approached the Department of Welfare of Plain Tribes and Backward Classes and the Guwahati Municipal Corporation with an application to identify them as manual scavengers. The application that was submitted in 2017, however, was only tossed among the departments with no fruitful result till date. If identified as manual scavengers, Amar, Chania, Santosh and the hundreds others living in Guwahati will be able to avail rehabilitation benefits including one-time cash assistance of Rs 40,000, loans up to Rs 15 lakh at concessional rate of interest, credit-linked patent capital subsidy up to Rs 3.25 lakh, skill development training up to 2 years with a stipend of Rs 3,000 per month, coverage of manual scavengers for health insurance under Ayushman Bharat Yojana. As a manual scavenger, having no access to these facilities can lead to serious health consequences, even death. मैम इतना गंदा काम करेगा बीमारी नहीं होगा मैम। हाँ, कभी बुखार लग जाता है, कभी पूरा बदन दर्द करता है मैम, पूरा बदन दर्द, पूरा क्या कीजिएगा। घर में देखता कोई करने वाला तो नहीं है, छोटा छोटा बच्चा कौन करेगा। वो काम करके फिर भी काम में जाते हैं, टैबलेट खाते हैं, दर्द खुद का दर्द खुद हम लोग सहते हैं मैम, क्या करेगा। कौन है हम लोग का, कोई तो माँ कोई भी तो नहीं है मैम। अपना हम बस टंकी का काम डिंग कर लिए मैम, ऐसे उठा उठी हमने किया मैम, 500 बाल्टी मैला फेंका हमने, तो शरीर क्या कहेगा मैम। तो घुटन जब होता है ना तो हम लोग थोड़ा बाहर में मुंडी निकाल कर थोड़ा सांस ले लेता है, घुटन तो होता ही है। सब कुछ मिलता है उसमें, शीशा और बोतल ये सब, चाकू वगैरह वगैरह सब मिलते रहते हैं। आप देखेंगे तो खुद भी मालूम चलेगा, आपको दिखा भी देगी। दिक्कत तो होता है, कभी कभी हाथ तो कट जाता है, कभी थोड़ा सा मतलब दुख को आते रहता है, थोड़ा हाथों में मतलब प्रॉब्लम आते रहता है, कभी पैर में प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा सा लग जाता है। अब जहाँ में शीशा है वहाँ में पैर पड़ जाता है तो थोड़ा सा लग ही जाता है, तो अब वो महसूस होता रहता है वहाँ में शीशा है, तो वहाँ से हम लोग पकड़ के निकाल लेता है शीशा। तो हाथ से ही निकालता हम लोग ऐसे ही। आज हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर हैं, सफाई कर्मचारी हैं। आज हम लोग किसी के घर में गंदगी का काम करते हैं और गंदगी का काम करने के कारण हम बीमार होते हैं। हम बीमार होते हैं, बीमार से हम मर जाते हैं। तो आज जो आयुष्मान भारत का जो योजना थी, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की जो योजना है, आज उन्होंने कह दिया, आज हम लोग आयुष्मान भारत के लिए भी हम लोग गए थे कि भैया हम लोग तो ये सफाई का काम करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, हमें आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2011 का जो सेंसियस था उस सेंसियस के अनुसार जितने लोग इस लिस्ट में हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा, गोल्डन कार्ड जिसे हम लोग कह रहे हैं,
हेल्थ का 5 लाख का बीमा है उसमें। An identified manual scavenger is allotted a plot of land and financial assistance to construct a house or a ready-built house with financial assistance. But the slum dwellers in Guwahati are deprived of the most basic facilities and live in a constant fear of being kicked out of their homes, since the land they are currently living on belongs to the Assam Police Reserve Force. यहाँ पर कोई भी घर आपका पक्के मकान का नहीं है, सब लकड़ी और तर्जे बेढ़े का मकान है। और लकड़ी और तर्जे बेढ़ा का मकान होने के कारण हम लोग का आए दिन डर लगा रहता है, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट से यहाँ पर आग लग सकता है, कभी भी कोई दुर्घटना, बड़ा से बड़ा दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। जो कि 2009 में तो इससे बहुत विशाल आग लगा था, जो कि एक भी घर नहीं बचा था। आइए आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग का ये जो है ये नाले का जो पानी है, ये देखिए ये जो नाला है, ये नाला बारिश के समय में क्या होता है कि पूरा का पूरा भर जाता है। और ये भरने के कारण घरों में पानी घुसता है, और बारिश का पानी जब आता है तो ये पूरे के पूरे घर डूब जाता है हम लोगों का। As Santosh navigated through the narrow lanes in the slum, the stark reality of the slum dwellers who are deprived of their identity became more evident. यहाँ पर देखिए रेलवे ट्रैक सामने है, और ये रेलवे ट्रैक सामने होने के कारण यहाँ पर 4 से 5 आदमी हम लोग का मर गया। यहाँ पर बच्चा लोग को यहाँ पर दिन भर डर लगा रहता है हम लोग का, कब क्या दुर्घटना हो जाए। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हम लोग का पानी का और शौचालय का। यहाँ शौचालय का भी व्यवस्था हम लोग का नहीं है, जो कि देखिए हम लोग तो दूसरे के घरों में जाकर शौचालय साफ कर देते हैं, उनको बीमारियों से बचा देते हैं, पर हम लोग खुद आज बीमारी से घेर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं हम लोग। पीछे के रूम में तो देखिएगा, जाकर देखिएगा घर दे, वो चूहा ऐसा घर का हम लोग किया है, ऐसे जगह चलने से धंसता है, नीचे से पानी निकलता है। कभी तो देखिए तो खाना में चूहा ढुक जाता है, क्या करेगा। सबका हालात कमज़ोर है, सब भी कोई चाहता है कि अच्छा घर द्वार हो को, सबका बच्चा अच्छा से रहे मेम साहब। तो ऐसा नहीं है हम लोग का सब कोई करके जाता है, ये करेगा वो करेगा, कहाँ कोई कुछ करता है। सरकार के तरफ से बहुत कुछ आता है, कहाँ हम लोग कुछ मिलता है। आज कुछ मिले से तो ऐसे नहीं होता, हम लोग ऐसे नहीं रहते मैम। हम लोग जितना यहाँ कष्टों में रहते हैं ना, कोई उतना कष्टों में नहीं रहेंगे जितना हम लोग यहाँ कष्टों में जी रहे हैं। This is Bhim Baswar, founder and president of All Assam Safai Karmi SC Student Union. An M.Tech degree holder, Bhim decided to be a social activist to stand up for the rights of the Harijan community. His organization, with over 1,000 core members and over 1 lakh supporters, moves around Assam to raise awareness about the rights of the Harijan community. इंडिया का आदमी को कभी स्लम पता नहीं चलता है, वो फॉरेन वाला आके एक फिल्म बना के ऑस्कर भी ले लिया। लेकिन ऑफिसर को पता होना चाहिए कि स्लम का मतलब क्या है, स्लम का इनकम कितना होना चाहिए, स्लम का घर का कंडीशन कैसा होना चाहिए, ये उसका नॉलेज होना पड़ेगा उस ऑफिसर को, तभी वो आइडेंटिफाई करेगा। जिसको पता ही नहीं है वो तो ऐसे उल्टा पुल्टा कर ही देगा, तो ऑफिसर का भी गलती नहीं है। स्लम इससे और बुरा हालत क्या हो सकता है। To accelerate the pace of economic development of the scheduled castes, the Assam State Development Corporation for Scheduled Castes Limited was established in 1975. The corporation, however, blamed the bureaucracy for the inconsistency in the identification of manual scavengers. The Guwahati Municipal Corporation, meanwhile, accepts that nothing in fact has been done, but a change is definitely on the cards. এইটো ক্ষেত্ৰত কি জানে আসলতে কি হয় সৰকাৰটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যি বিউৰোক্ৰেটছ সেইখিনি তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিৰ ওপৰত গোটেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো হয় আসলতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বা যি ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিনিষ্ট্ৰী যেতিয়া বাজেট ধৰিলে কিবা কৰিলে সব আগুৱাই দিলে কিন্তু গোটেই বাকি কামখিনি তাৰমানে এই বিউৰোক্ৰেটছৰ মাজত থাকে আৰু যেতিয়ালৈ তেওঁলোক তাৰমানে মেণ্টেলি তাৰমানে ছাপৰ্টিং মুড এটা ওলাই নাহে એટલે বহুত বাধা থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰমানে বেনিফিচিয়াৰী সিলেকশ্যনত যথেষ্ট আখোৱা আছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি যদি সেই বেনিফিচিয়াৰী সিলেকশ্যনটো এক নম্বৰতে জেনুইন কৰি ল'ব পাৰোঁ
তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ডাঙৰ ছাকচেছ আৰু হৰিজনসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট চিৰিয়াছলি তাৰমানে ফাণ্ড আছে কিন্তু এই ফাণ্ডটো আনি আমি ইয়াত ইউটিলাইজ কৰিব পৰাকৈ সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব কাৰণ এটা কথা কি আজি যদি মই প্ৰপ'জেল দিওঁ প্ৰপ'জেলটো যদি তেওঁলোকে চেংচন কৰি দিয়ে তাৰপিছত যদি মই মাটি বিচাৰি থাকোঁ আৰু যদি এটা টেনিৰৰ ভিতৰত সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যদি মই ৰেডি কৰি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ ফাণ্ডটো ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব I do agree that nothing has happened till now, but then things are changing now, ma'am, and I'm sure that we are going to do it very soon. So, is there any action plan for this? Or? Yes, of course. You see, ma'am, these are, very, important, people in our society, and we cannot neglect them. And when we talk about developing the living conditions in the cities, when we talk about, developing our cities, we need to look at our slums, with right earnest. So it's definitely on the cards, and I'm sure GMC would, and you see the new government has a lot of plans, and we have been given directions. A cabinet meeting chaired by the Prime Minister Narendra Modi on January 19th decided to extend the tenure of the National Commission for Safai Karmcharis by 3 years up to March 31st, 2025. However, the slum dwellers of Ward 10 in Guwahati have little to no hope of any difference in their subhuman living conditions. डेवलपमेंट के नाम पे आपको लगता है कुछ हुआ है? नहीं, डेवलपमेंट में 100% में 4% हुआ है अभी तक हम लोग का समाज का आसाम में 4% हुआ है, लेकिन 70% हो जाना चाहिए था। उनके पास टाइम ही नहीं है तो कहाँ से होगा। अभी कभी बर्थडे सर्थडे होगा तो झाड़ू लेके पहुँच जाएंगे हम लोग का झाड़ू मांग के हम लोग से, लेकिन जो असल में काम करना चाहिए वो लोग गायब है। हम लोग तो कुछ दिन बाद झाड़ू भी छीन लेंगे अगर ऐसा प्रोग्राम में देखेंगे हम लोग का झाड़ू का पॉलिटिक्स बंद करना पड़ेगा। दुकान दिया था मैम तो सब यहाँ का लोग जानते हैं। जब हम लोग स्वीपर आए, हम लोग बास्पोर है, तो हम लोग जैसे सेफ्टी टैंकी साफा करता है, जैसे ड्रेन साफा करता है, तो वो लोग सब मान जाता है हम लोग गंदा काम करता है बोल के वो लोग हम लोग से कोई हाथ से कुछ लेता नहीं है, छूट मानता है मतलब। तो हमारे लोग तो बर्तन भी नहीं धो सकते किसी के यहाँ पर। बर्तन धोने जाएंगे तो धोने नहीं देगा, कहेगा साला नीच जात का है, इसको कैसे धुलाएंगे अपना घर का बर्तन। कपड़ा भी नहीं बेच सकते, पान भी नहीं बेच सकते, चाय भी नहीं बेच सकते, तो करेंगे क्या। सबसे बड़ा बात 50 बोर्ड बन गया है यहाँ पे आसाम में, बहुत सारा बोर्ड बना है, कैरम बोर्ड जैसा बहुत सारा बोर्ड बना है, लेकिन हम लोग का सफाई डेवलपमेंट बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि सफाई डेवलपमेंट बनाने से कोई बास्पोर या वाल्मीकि को बनाना पड़ेगा चेयरमैन, तो ये तो कैसे होगा। हाँ, एक बराबर स्टेटस नहीं होगा ना, इसीलिए बोर्ड बनना चाहिए। तीन बच्चा है मेरा, एक को सोचा था डॉक्टर बनाएगा, एक को पुलिस बनाएगा, एक को वकील भी बनाता रहा, ये सब मेरा ख्वाहिश था मेरा। लेकिन वो गरीबी के पाकर, घर के पाकर, नौकरी नहीं है बोलकर वो अब हमको नहीं लग रहा है जो मेरा ये सपना सच होगा बोल के। अपना जिंदगी जब चलते ना तो हम देखते हैं ना, हम अपना जिंदगी की जिंदगी हमने कष्ट किए है, ये जिंदगी में लड़का बच्चा कष्ट ना करे, हम वो सोचते हैं। हम जितना कोशिश करते हैं कि उन लोग के और आगे ऊपर ले जाएं, मैंने हालात ऐसा हो गया मैम साहब, जितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं नीचे गिरते हैं। हम लोग PhD छोड़ के सब पढ़ाई कर चुके हैं, तो हम लोग को पता है पढ़ाई का वैल्यू क्या है, लेकिन हम लोग का नसीब इतना ख़राब है कि जब तक हम लोग पढ़ाई करके आगे बढ़े तब तक मोदी जी ने सब प्राइवेट कर दिया, नया सरकारी नौकरी आना बंद हो गया, और कुछ आया भी तो 10 पोस्ट है तो 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन हार्ड हो गया।
As per the Ministry of Social Justice and Empowerment, 58,098 manual scavengers were identified in the years 2013 and 2018. Among them, 3,921 are from Assam, who have also been paid the one-time cash assistance of Rs 40,000. Both these surveys are obviously underreported, as the manual scavengers from this slum are missing from the government's data. While these people are aware that manual scavenging is illegal in India, but they wouldn't be bound to this degrading occupation if they had a place to live and a way to make a living other than cleaning human waste. आपको वो तो पता है ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको पता है ना? टैंकी का साफा नहीं करना चाहिए। अब साफा नहीं करेंगे तो मैम हम लोग खाएगा क्या? दूसरा काम मतलब बहुत कोशिश किया हमने। Their grievances are very valid, and if it has not been addressed till now, you know, we need to do something about it, and sooner we start the better, and better late than never. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.